हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट currently a very difficult time is going on. We are still trying to fight with COVID-19. We are following the rules and regulations of COVID-19. One more thing, you are also a coronavirus. Reason? You are still fighting, you are staying at your home, your schools are closed, but we are alive. We are always alive. Reason? We are trying to make a healthy relationship between you and me. Okay? With this, let me introduce myself. I am your computer science teacher, Virendra, and I am here to give you the practical demonstration based on mail merge. Yes, in the last video, you have the introduction of MS Word as well as mail merge. In this video, we'll try to understand each and everything with the help of my laptop. We'll have a practical demonstration for each and everything. We'll try to understand how to create the main document, how to create the address list, and how we are going to merge it. Right? Once it is done, how we are going to insert the merge field, how we are going to view the merge field, and finally how to take the printout of that. Right? So once all these things done, we'll try to invite our friends by using the mail merge. So students, what are you waiting for? Don't skip any part of this video. Okay? Right now I'm coming to my laptop so that I can give you the practical demonstration for the same. Okay? Please come. Okay students, now I'm going to start the practical demonstration. First of all, we are going to understand how we are going to open the Microsoft Word. Okay, so what we're going to do that? First of all, click on Start, go to the All Programs. After clicking All Programs, your installed application list will come. Right? In this All Program, you have to find out where the Microsoft Office is. So just scroll downwards like this. So you are able to find out here Microsoft Office, and finally then after you have to click on Microsoft Office Word 2007. Like so, click one time. Now please wait for that. It will open very soon. Now finally you are able to see the Microsoft Word screen. Right? So now students, it's time to understand what the interface is saying there. ये जो इंटरफेस आपके सामने है ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे हम. ठीक है? सबसे पहले on the top, please see my mouse pointer. On the top, this is title bar. On this title bar, document 1 is written there. So I have already told you in the previous video that title bar shows the default file name. Right? Now below the title bar, this is your menu bar, like home tab, insert tab, okay, review tab, view tab, mailing tab, all kinds of tabs are there. So this is in this you are getting the name of the menus, and each and every menu is known as tab. Below the menu bar, you are having your toolbar. In this, each and everything is going to divided into groups. Likewise, if you see the toolbar, okay, this is clipboard, font, paragraph, style, editing. Okay, these all are the name of the groups. Okay, so right now we are staying at home tab, and these are the groups in the home tab. Clear? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने होम मेन्यू पे क्लिक किया. होम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद
अब आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड एक ग्रुप दिखाई देगा, फॉन्ट ग्रुप दिखाई देगा, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो हर ग्रुप में आपकी ज़रूरत, उस ग्रुप में जितनी भी जो ज़रूरत या काम की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बटन्स आपको मिल जाएंगे। ओके, लाइकवाइज इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप यू आर हैविंग 4 buttons. Number 1 format painter, number 2 copy, number 3 cut, number 4 paste. Is it clear to you? Now, so this is the way to open your Microsoft Word. I have told you one more thing, that if you want to create the mail merge document, how we are going to do that? How we are going to do that? Right now this is the your MS Word document is open, right? So once it is open, what you will do? You will do just one thing, type your the content of main document which is common for all the, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं, कुछ कंटेंट कॉमन होते हैं, जैसे डेट, टाइम, प्लेस सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए भी एक कंटेंट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, उसको आप देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या किया, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है। मैंने पहले इसको मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए मैंने एक फ़ाइल बना रखा है मेल मर्ज एग्जाम्पल के नाम से। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, ओपन हो रहा है ये। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए ये जो कंटेंट बनाया है वो कुछ इस तरह से है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी। अब मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ से इस तरीके से मिनिमाइज़ किया, और उसके बाद जो दूसरी फाइल है वो हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम जो दूसरी फाइल है वहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। तो ये दूसरी फाइल ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अब हमारा ये जो डेटा है, मैंने जल्दी से आपका टाइम बचाने के लिए ये मैंने आपके लिए डेटा पहले से लिख दिया था। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। In collaboration with National Sports Association (NSA), Shubhra Singh Children's Academy has invited schools nationwide to celebrate its 5th annual meet on 14 November 2021. ठीक है, we invite you to attend and participate in the function and encourage all the students. ये मैंने एक छोटा सा कंटेंट तैयार किया गया है। अब इस कंटेंट को आप सेव कर लीजिए। अब इस कंटेंट को सेव करिए। कैसे सेव करेंगे इसको भी आप ध्यान से देखिए आप। ओके, यू आर अ वेरी स्मॉल किड, ओके, ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? सो डू वन थिंग, जस्ट वॉच केयरफुली, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, go to the save. This window is known as save as dialog box. इस विंडो का नाम है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओके। अब इस विंडो में हम 2 काम करते हैं। पहला काम, जिस जगह पर फाइल को सेव करना है वहाँ तक हम ब्राउज़ करेंगे, जाएंगे वहाँ तक, और उसके बाद फाइल का नाम टाइप करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो पहले हम ब्राउज़ कर लेते हैं। कैसे ब्राउज़ करेंगे, जहाँ पर हम सेव, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, कैसे करेंगे, स्क्रॉल डाउन किया। अब आपको ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नेविगेशन पैन, और राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम कंटेंट पैन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लोकल डिस्क सी ड्राइव पे गया, इसके जो कंटेंट्स हैं आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, आपको स्क्रॉल डाउन किया। अब देखिए इसी को बोलते हैं ब्राउजिंग करना। ब्राउज़ कर रहा हूँ मैं कि कहाँ पर मुझे सेव करना है। अब मैं सेलेक्ट करूँगा यूज़र्स, यूज़र के बाद ये प्रोफाइल का नाम है, फिर मैं चला जाऊँगा डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर फाइल को जो नाम देना चाहें वो हम टाइप कर देंगे। मैं इसका यही नाम रखूँगा, मेल मर्ज एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू क्लिक ऑन सेव बटन। क्लिक करते हैं एक बार, ओके करिए। एक बार और सेव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक आपने केवल 3 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नंबर 2, हाउ टू क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट।
अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है। आपने जिसको इनवाइट करना है उनका नाम अभी नहीं लिखा है। जो कॉमन कंटेंट हैं उस कॉमन कंटेंट को जिसको देना है आपने बस उस कॉमन कंटेंट को तैयार कर लिया है। ठीक है, उस कॉमन कंटेंट को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम कॉमन कंटेंट तैयार होने के बाद अब हमें ये सीखना है कि जो हमारे कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, जो स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है, अब हमें थोड़ा उसको भी समझना है कि उनके स्टेप्स क्या क्या हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन जो हमारा टेक्स्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब हम स्टेप्स का फॉलो करते हुए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव द बेसिक स्टेप्स। ओके, कैसे इसका बेसिक स्टेप क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। मैंने नोटपैड ओपन कर दिया। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मैं बेसिक स्टेप्स ऑफ डूइंग मेल मर्ज। नंबर वन क्या है, क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट। नंबर टू, क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट हो गया। नंबर टू हमारा क्या है, क्रिएटिंग डेटा सोर्स। दूसरे नंबर डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। तीसरे पे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें से हमने जो ये वाला स्टेप हमने किया है, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय, इसे ही हम कहते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मेन डॉक्यूमेंट है हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट जब हो गया है, अब हमारी बारी है डेटा सोर्स की। तो पहले हम समझ लेते हैं डेटा सोर्स क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम इसको समझेंगे हम। ठीक है, सो डेटा सोर्स का मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा एड्रेस लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि जो हमारे इनवाइटीज़ हैं, जो जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, उनका कंप्लीट नेम आ जाए, मोबाइल नंबर आ जाए, एड्रेस आ जाए, कंट्री आ जाए, स्टेट आ जाए, ये सवाल, इन सबको हम एक जगह रखते हैं हम। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डेटा सोर्स हमारा क्रिएट होता है, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। उस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ मैं, एप्लीकेशन नेम फॉर क्रिएटिंग डेटा सोर्स। एप्लीकेशन नेम क्या है आपका, MS एक्सेस। ठीक है, और जब आप MS वर्ड में डेटा सोर्स को क्रिएट कर लेंगे तो उसका भी फाइल एक्सटेंशन होगा, उसका भी एक फाइल एक्सटेंशन होगा, फाइल एक्सटेंशन फॉर डेटा सोर्स। ठीक है, क्या होगा, .mdb। इसका फुल फॉर्म भी है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू फॉलो द एग्जैक्ट स्टेप्स विच आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, राइट? So first of all, I have clicked on mailing tab. Once it is clicked on, this is the group, start mail merge. In this group, we are having this button, start mail merge button. Okay, there is a small arrow, click one time, and in this you are having some options like letters, email messages, envelopes, labels, directory, normal word document और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के। और ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम इसको बाद में बताएंगे। अभी आपको जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका होगा कि जब आप मेलिंग टैब पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे जाएंगे और वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को। क्लिक करते हैं एक बार। क्लिक करने के बाद आपके सामने राइट हैंड साइड में जो खुल के आया है उसे हम कहते हैं यहाँ पर
मेल मर्ज पैन। क्या कहेंगे? मेल मर्ज पैन। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर लेटर्स ऑप्शन को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो लेटर्स ही सेलेक्ट करेंगे आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नीचे हम आपका है, नीचे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो हम थर्ड ऑप्शन के लेंगे। अपने स्टेप नंबर 1 यानी कि क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ पर अगर जो डॉक्यूमेंट बना रखा है उसको यूज़ करना है तब तो आप थर्ड लेंगे। कोई बना बनाया टेम्पलेट है उसको यूज़ करना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन, और आप यही जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको ही यूज़ करना चाहते हैं आप, तब आप यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब मैंने क्लिक किया है सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। मैंने कहाँ क्लिक किया है? सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। ठीक है, नाउ सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक किया। अब आपको बताना है कि जो एड्रेस लिस्ट, अब हम इस समय स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में एड्रेस लिस्ट हम बनाने की तैयारी में हैं हम। यहाँ पर अब हमें ये सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि जो रेसिपिएंट है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए एक बार, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास बनी बनाई लिस्ट जैसे MS एक्सेल में है उसको यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कॉन्टैक्ट सेव है उस कॉन्टैक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन को यूज़ करेंगे आप। और थर्ड ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट। चूँकि हम पहली बार कर रहे हैं चूँकि हम पहली बार हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम थर्ड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ओके, सो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप इसको आप देखिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, so students, so in the recipient, select recipient, I have chosen type a new list। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रिएट है ऑप्शन इस पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे। याद रखिएगा क्रिएट बटन पे अब आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, अब आपका यहाँ पर आपको इस समय एक स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो का नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट। न्यू एड्रेस लिस्ट। तो यहाँ पर इस लिस्ट, यहाँ पर अब आपको रेसिपिएंट जो है वो हमें क्रिएट करना है, किसको किसको इनवाइट करना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस विंडो में यहाँ पर कर्सर आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में। यहाँ पर टाइटल मतलब मिस्टर या मिसेज जो लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा मिस्टर। इसके बाद मैंने अब टैब की का प्रेस किया। कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, उसको मैं प्रेस करूँगा इस तरह से। अब आप यहाँ पर आ गए, फर्स्ट नेम पे आ गए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नेम में आने के बाद यहाँ पे हम कोई नाम टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वीरेंद्र। लास्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, कंपनी नेम, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ गलती हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ एक बार। यहाँ मिस्टर होगा वीरेंद्र कुमार, SBSCA, एड्रेस में आ जाएगा आगोपुर। ठीक है, यहाँ मैं स्टेट लिख देता हूँ, कोई भी स्टेट का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। इसके बाद सिटी में लिख देता हूँ, कोई भी सिटी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेट, जिप कोड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंट्री। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। आगे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक है, या टैब प्रेस करते हैं। होम फ़ोन, अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहें, वर्क फ़ोन दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 98, इसके बाद ठीक है ये नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वर्क फ़ोन पर ईमेल आईडी भी दे सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से आप टैब का इस्तेमाल करके आप एक एक सेल्स में या एक एक बॉक्स में आप जा सकते हैं आप।
और अगर आपने टैब प्रेस करते गए और आप इसी के साथ एक न्यू लाइन पे भी आ जाएंगे. In case if you don't want to use the tab button, so what will you do? Would you do nothing? Just use your mouse. माउस से जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, फिर वहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी हमने एक कंप्लीट एड्रेस को हमने टाइप कर लिया है. अब हम आगे भी टाइप कर लेते हैं. तो इस तरह से मैंने एड्रेस टाइप कर लिया. ठीक है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस. वर्क फ़ोन दे देते हैं यहाँ पर. ठीक है. एक और ले लेते हैं यहाँ पर. So students, I hope each and everything is clear. But if you want to have any kind of clarification, any question, okay, definitely you can just come to me or you can just make a call. Okay. So students, right now we are about to complete इस तरह करके आप एड्रेस को कंप्लीट कर दीजिए आप. ठीक है. ठीक है. मिस्टर विक्रम, ओके, ही इज़ फ्रॉम NSA और लेट मी टेक एनी एड्रेस. Okay, so this is becoming the address for that. Okay. Okay, this is your address and let me write the pin code also. Country is India. Let me write the complete phone number. So students, right now I have taken the 4 entries here, right? If you want to make a new entry, you can just make an entry, but right now I am just going to take only 4 entries here. Okay. So likewise you have to make the address list for that. Okay. So students, I think you are able to understand right now what I am trying to deliver with you. Now it's time to click on OK. Let's wait. Now this is the window which is known as save address list. This is called as save address list. So whatever the name of your address list, you have to give the name, right? So right now please be remember, right now this is the folder my data source. This is the folder where all the address lists are saved. Please be remember, this is the folder where all the address lists are saved. Okay. Suppose I have written here the name of the address list is NSA. Okay. Now click on save button. Okay. Once it is saved, you are able to see the complete, okay, window here. You are able to see the complete window like this. Okay, each and everything is mentioned here, right? So finally what we will do, just click on OK. अब हमने फाइनली क्या किया है, OK पे क्लिक कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका 2 चीज़ें बिल्कुल आपकी बन गई हैं. अब नंबर 1, मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है
अब आपका जो रेसिपिएंट लिस्ट है वो भी आपका क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर अब आपको जो करना है, डेटा सोर्स और जो मेन डॉक्यूमेंट है दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके हम यहाँ पर अपने इस मेल मर्ज के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ what I have delivered here, let me recall one more time. In this we have understand how to create the main document, then after we have understand how to create the recipient list, that is your address list. These two things are covered here. Right now 3 things are pending here, that is how to insert the merge field, then after how to view your merged data. It means then when your data is merged and you have created your merge document, how it is look like, and finally you have to take the printout of that. So 3 things are pending. So we will watch the practical demonstration of these 3 pending topics in the next video, and in this, that's all for that, and we'll meet in next video with the remaining one. Okay. Okay students, I hope you have understand each and everything what I am trying to deliver with the help of practical demonstration, okay, which is based on mail merge. ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको MS वर्ड में किस तरीके से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना है और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, हर एक चीज़ को कोशिश की है अच्छी तरीके से बताने की। आप अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर दें। ओके, एंड वन मोर थिंग, please don't forget to subscribe my channel, because your subscription, your comment, your feedback, each and everything gives me a one kind of motivation. That motivation will enhance my video, will upgrade my video. Okay, and with the end of this video I just want to say one more thing. Please press the bell icon, because bell icon gives you one kind of notification of my latest videos. So students, thank you so much for watching this. We'll meet in next video with new topics. Thanks again.